ਕਰਦੇ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ f(x) = 1/k। x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ k ਤੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹ 0। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਭਰੋਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 1/k, 2 ਭਰੋਗੇ 1/k, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਜਦੋਂ k ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 1/k, ਪਰ ਜਦੋਂ k+1 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ 0, k+2 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ 0। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਫਾਈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ mxt ਲਿਖਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ e ਦੀ ਪਾਵਰ tx ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਕੋਮੇ ਪਾਪਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਦੂਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ k ਤੱਕ, e ਦੀ tx ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਕੀ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ 1 ਤੋਂ k ਤੱਕ ਆ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/k। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। 1/k ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ 1 ਤੋਂ k ਤੱਕ e ਦੀ t, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ e ਦੀ tx। ਹੁਣ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 1/k ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ e ਦੀ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਫਿਰ e ਦੀ t ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ e ਦੀ t ਦੀ ਪਾਵਰ k ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ GPCD ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ k ਤੱਕ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਚ k ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਉਸ GPCD ਦਾ ਸਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੌਰੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਮ ਚਾਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ GPCD ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਮ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ GPCD ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਮਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਭਾਵੇਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, a ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ 1 r ਦੀ n 1 r, a ਕੀ ਹੈ e ਦੀ t 1 r ਕੀ ਹੈ e ਦੀ t, ਟਰਮਸ n ਦੀ ਗਿਣਤੀ n ਕੀ ਹੈ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ a 1 r e ਦੀ t। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਥੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 1 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0, ਨੀਚੇ 0 ਬਣ ਗਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ t ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ t ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ mxt 1/k e ਦੀ t 1 e ਦੀ kt 1 e ਦੀ t, t ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ t ਦੀ 0 ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ t ਦੀ 0 ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ mx t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ e ਦੀ tx, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਆਊਗੀ। ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ e ਦੀ 0 ਕੀ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ e ਦੀ 1 ਉਹ ਕੀ ਆਊਗੀ 1। ਸੋ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ t ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ mxt ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ e ਦੀ t ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਦੈਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1/k e ਦੀ t 1 e ਦੀ kt ਓਵਰ 1 e ਦੀ t।
बट जो टी 0 करोगे उदों आपां नूं पता ही है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन 1 नहीं हुंदा। सो 0 इज नॉट ए प्रॉब्लम, इहदा कोई एडी गल नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 0 तो ऑलरेडी आपां नूं वैल्यू पता होंदी है। जे इत्थे लिखिया हुंदा कि ई दी वैल्यू 1 है ना, हुण टी दी वैल्यू जे तुसीं 1 भरोगे, जे इहो जिहा कुछ आ जांदा तां 1 ते प्रॉब्लम हो गई सी, फिर मैं इत्थे लिखना सीगा इज इक्वल टू 1, फिर इत्थे की आउणा सीगा t1 ते कैलकुलेट करना सी, इत्थे की आ जाना सीगा e दी t1, t दी जगह मान लिखोगे इत्थे की आ जाऊगा e दी x, एक्सपैक्टेशन ऑफ e दी x ते ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ e ਦੀ x 1 ਬਾਈ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, e ਦੀ x ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ e ਦੀ x ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ 1 ਬਾਈ k ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ 1 ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ k ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹ, फिर आना सीधा ये 1 बाय k बाहर रह जाता है, ये आना सी e दी 1, फिर e दी 2, फिर e दी k, और GP3 होगी विद कॉमन रेशो, GP3 होगी विद कॉमन रेशो e। ठीक है, तो ये पर क्योंकि इहदियां टर्म्स फाइनाइट आ, e एक तो वड्डी आ, इवन देन आपां इहदा सम कर सकते हैं, सो इहदा सम फिर कर सकते सी। सो प्रॉब्लम देखनी आपां कित्थे आ, उस हिसाब नाल अगले स्टैप ते इत्थे वैल्यू पुट करके हल कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग जे आपां कुछ टर्म्स इहदियां छड्डदे भी हां तां भी मूवमेंट जनरेटिंग दे कोई एडा इफेक्ट नहीं पैंदा हुंदा, पर फिर भी कोई गल नहीं, तुसीं कर दिओ। होर क्वेश्चन देखदे हां। अगला क्वेश्चन देखो, एक इन्होंने क्वेश्चन दिता, वो कहता अर्थ मूवमेंट पता करो। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिता है राजे, इत्थे जे नहीं भी लिखिया तां भी ये चीज़ याद रखो भी टी है जिहड़ा ना ये लैस दैन 1 होगा मॉड, चाहे होवे बाइनोमियल चाहे होवे GP3, जिन्हों खोलण के बाद इनफाइनाइट टर्म आउंदियां उहदे च बाइनोमियल च भी ये जिहड़ी चीज़ है ये लैस दैन 1 होगी, अदरवाइज उसका सम नहीं हो सकता। तुसीं देखो ना जदों जिहड़ी चीज़ नूं खोलदे हो, जे तो वो इहो जी आ रही है मान लो a, फिर a स्क्वायर a क्यूब a4, जे ये a 1 तो वड्डी होवे तां इहदा सम a हो जाऊगा 1, ये उदों भी वड्डा नंबर 4, जे मान लो 2 है ये की हो जाऊगा 8, ये होगा 16, देखो नंबर 4 वड्डा ही वड्डा हो जाता, फिर इनफिनिटी को ही आऊगा ना एंड। जे ये नंबर होवे छोटा 1/2, 1 तो छोटा तो ये उदों छोटा हो जाऊ, ये उस तो भी छोटा हो जाऊ, ये उस तो भी छोटा हो जाऊ, ये छोटा ही छोटा हो जाना। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि कदे ना कदे ये रुक जाऊगा, जो छोटा ही छोटा हो जाता, पर जो वड्डा ही वड्डा हो जाता एक चीज़ पता उन्हें नहीं रुकना। सो ये चीज़ नूं याद रखिए। अच्छा, सिमिलरली बाइनोमियल भी सेम ही प्रॉब्लम होती है, इन्हें जो खोलोगे की आऊगा, आप मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपने दिता, वो कहता अर्थ मूवमेंट कैलकुलेट करो। हम देखो अर्थ मूवमेंट पहला तो देखो भी किहदे अबाउट कह रहा, अबाउट ओरिजिन कहना सी, पर इन्हें क्या नहीं, ये भी गलत है, इन्हें कहना चाहिए सी अर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, जाता है ऐ लिख दिंदा इत्थे x, फिर तुहानूं आप ही पता सीगा भी x माइनस 0, फिर तुहानूं पता सी भी 0 दे अबाउट मूवमेंट्स आपे कैलकुलेट कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ हद तक पता लग ही जाता। ज़्यादातर ना राजे एक चीज़ है, ज़्यादातर जिहड़े गिवन मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हुंदे आ पेपर च भी किताब च भी, वो अबाउट ओरिजिन ही हुंदे आ, ते मूवमेंट्स जिहड़ियां आउंदियां अबाउट ओरिजिन ही आउंदियां हुंदियां। ये थोड़ा जिहा दिमाग च रखियो, इन्ने नाल थोड़ा जिहा तुहानूं वधिया लगेगा, मतलब कैच हो जाएगी चीज़। मैंने पता मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में एक सीरीज एक्सपैंड कर सकते हैं। अर्थ मूवमेंट क्या है, जे फस्ट मूवमेंट क्या होंगे, मैं एक बार ये डेरीवेटिव करके ना टी की वैल्यू 0 भर दिंदा, जे 2 बारी क्या होंगे सैकेंड मूवमेंट क्या होंगे, मैं 2 बारी डेरीवेटिव करके टी की वैल्यू 0 भर दिंदा, 3 बारी क्या होंगे 3 बारी कर दिंदा, 4 बारी कर दिंदा, 5 बारी कर दिंदा,
आर्थ का की करोगे, आर वाले डेरीवेटिव करके जी की वैल्यू 0 किवें भरोगे, प्रॉब्लम आती है ना। सो बैटर है कि इहनूं खोलो 1 प्लस मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो मूवमेंट्स कैलकुलेट करने के दो तरीके है, एक तो सीरीज च एक्सपेंड कर दो, दूसरा वो डेरीवेटिव कर करके देख लो। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो वैसे बहुत आ, वो तुम मैं दिखाऊंगा, अज ही दिखाऊंगा इसे क्वेश्चन से। 1 इनू खोलो -3 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस टी दी 2 अप सोन इदा ही खुलती जाऊगी। सो मैं सीरी है जी ये बन जानी आ 1 नहीं यार इनू अपन करना ही पैना -3 -4 इदा लिखना सीधा -3 -4 -2 फैक्टोरियल इतने माइनस टी दी थोड़ा जहा आप पता लग जाएगा -3 -4 इतने की आएगा एक होर कट जाती होंगी -5 10 फैक्टोरियल माइनस टी दी क्यूब, क्योंकि अपन सिमेट्री दिसूगा आर्थ ते जाना ना। प्रॉब्लम ये आर्थ ते जाना, आर्थ मूवमेंट आर्थ ते नहीं। 4 5 कि आप इतने सिमेट्री बनाइए आर तक जाइए, कितों तक गया है थोड़ा जहा कैच करो इस चीज में। जदों टी की पावर 1 आ तो 3 ते रुक गया, 2 आ तो 2 स्टेप 3 तो 2 तक कटे। एक मिनट मैंने सिमेट्री बनाने दो, यदि सिमेट्री बना के मैं लिखता ये चीज़ ना आपको देखने वास्ते ऐ करना पड़ेगा। देखो मैं तुहानू दसदा पहली चीज़ कित्थे खत्म हुई है, पहली चीज़ खत्म हुई है 3 ते, दूजे स्टैप च कित्थे खत्म होया काम जो भी है प्लस माइनस हम भुल जाओ वो आप मैनेज कर लांगे बाद। दूजा खत्म होया 4 ते, तीजी बार खत्म होया 5 ते, पहली बार 3 ते, 2 है ना दूजी बार 4 ते, 3 है ना 3 नाल 5 पे है। अब देखना आर नाल की होगा। सो एदा एक फार्मूला होंदा आर्थ टर्म कढण दा, व्हाट इज आर्थ टर्म, ठीक है। देखो एक सीरीज अपन आपे आ जानी है वो चीज़ जी खत्म होनी है जिथे वो इदा ही होंदा। पता नहीं तुसीं फाइनल ईयर च हाँ तुसीं कीता होगा 100% तुसीं कीता, मैं ही करवाना होना जदों गॉस टैसट आउंदा हुंदा सैकेंड ईयर च, मैं करवाया भी सी, आई थिंक करवाया ही हो, गॉस टैसट करवाया सी ना, रेशो टैसट गॉस टैसट ने उत्थे आउंदी हुंदी है ये चीज़, सीरियां ही दित्तियां होंदियां। आप देखना होंदा भी वो अर्थ टर्म कित्थे खत्म होगी, तो ये खत्म होने का तरीका देखने का यह होंदा पहली टर्म 3 ते खत्म, दूसरे के कोरस्पोंडिंग 4 ते खत्म, तीसरे के कोरस्पोंडिंग 5 ते खत्म, आर्थ के कोरस्पोंडिंग कित्थे खत्म होगी। सो इदा इन्हां नूं कॉम्बिनेट च लिख लईदा हुंदा, फिर ये फार्मूला बन जाता हुंदा a + n - 1 d। डी की हुंदा कॉमन डिफरेंस, ए की हुंदा पहली टर्म, n की है जिहड़ी टर्म कढनी आ, मैं कढनी आर्थ। सो ए की जगह ते पहली टर्म आ गई 3, मैं कढनी आर्थ, सो r - 1 डी इन्हां दा डिफरेंस 4 च 3 कढे 5 च 4 कढे 1, सो ये आएगा r + 2। सो आर्थ टर्म है जी उत्थे वो खत्म कित्थे होगी, वो r + 2 ते खत्म होगी। सो अपने को इदा ही आप तुरे जावांगे -t की पावर r पई होगी, इत्थे r फैक्टोरियल भी पिया होगा, खत्म यह r + 2 ते होगी। चलूगी कितों ऑब्वियसली -3 -4 -5 ते इहदे मूहरे भी फिर -r आऊगा, माइनस आऊगा, ठीक है जी। सो ये चीज़ां आपां नूं देखने पे हुण इहनूं जस्ट सिंपलीफाई कर लैंदे आ। सिंपलीफाई करने के बाद की आउंदा देखो कुछ चीज़ां ना सिमेट्री तो ही पता लगी जांदियां होंदियां। सिमेट्री तो किवें माइनस माइनस प्लस माइनस का स्केयर प्लस साइन की आऊगा। अच्छा एक इत्थे कुछ रह नहीं गया आल्फा नहीं कुछ नहीं है, सिमेट्री तो ही पता लगी जाता होंदा। देखो 1 + sin 3t इत्थे भी प्लस ही आऊगा 3 4 t² / 2 फैक्टोरियल। गां वाले देखो -3 माइनस 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 एदा माइनस प्लस, सो फिर प्लस 3 4
5 टी दी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि माइनस विच आ तां रहा पर उहदा रूल विच कुछ नहीं गा। सो सिमिलरली फिर इत्थे भी होऊगा। कितनियां टर्म सीगियां 3 4 5 तो लैके आर तक, आर प्लस 2 तक। वैसे देखा जाए तो मैं तो इतने सीधा प्लस लाने लगा सी, पर फिर भी आप करके देख लें जे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन आर प्लस 2 तक जाओ तो कितनी टर्म होनियां है आर ते आर प्लस 1 ते आर प्लस 2 ते 1 तो लैके आर प्लस 2 यानी कि कुल होनियां आर प्लस 2 टर्म। जे पहलियां दो छड़ दई तो कितनियां रह जानियां, इहदे चों दो कढ दो आर रह जानियां, यानी कि कुल कितनियां आर टर्म्स आ, यानी कि माइनस कितनी बार आया होगा आर बार। तो इसका मतलब की होया इन्हां सारियां चों माइनस बाहर कढदा मैं, इत्थे लिखदा -1 दी पावर आर, तो इत्थे भी -1 दी पावर आर बाहर आऊगा, मिल के की बन जूगा -1 दी पावर 2 आर। इहनूं भुल जाओ, फिर हुण किसी नंबर की पावर ईवन होवे तां ओह पॉजिटिव रह जांदी, सो ये पॉजिटिव आ गई। जितों तक मैंने लगता तुहानूं समझ लग गई होगी। तो लास्ट ते आउंदे आउंदे अपने कोल की आ गया 3 4 5 अप टू सो ऑन आर प्लस 2 ते आ गया टी दी आर बाई आर फैक्टोरियल। सो आर्थ मूवमेंट की हुंदी आ, आर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन कह रहा है। आर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन म्यू आर डैश की आई फिर कोएफिशिएंट ऑफ टी दी आर बाई आर फैक्टोरियल की आए 3 5 अप टू ऑन आर प्लस 2। लो जी ये तुहाडा आ गया आंसर। हुण तुहाडे दिमाग च आउणा चाहिए कि यह डेरीवेटिव करके तुसीं कढ सकदे सी, बहुत घट चांस 0.1%, पर वह भी कढ़ सकदा, यानी कि ये कह लो कि मैं कढ़ सकदा, थोड़े चों एक अद्धा स्टूडेंट कढ़ सकदा बहुत ब्रिलियंट, पर चांस बहुत घट आ वो। सो ये चीज़ थोड़ा उत्थे अंदाजा लाना पऊगा भी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया किहड़ा राह बहुत सौखा, क्योंकि इत्थे बहुत सारे राह होने हर एक चीज़ नूं सॉल्व करदे। चलो अगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन दिता होया इन्होंने, एक चीज़ मैंने इत्थे देख के दसो हुण मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन नहीं कह रहा, ये कह रहा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। चलो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, हुण जे ये क्वेश्चन पेपर च आ गया तो सब तो पहला जे तुहानूं स्क्यूनेस ही नहीं पता की हुंदा ते तुहाडा काम खत्म आ उत्थे। आपां कल कीता सी पहला मेजर ऑफ स्क्यूनेस फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उस तो बाद इन्हें की किया हेंस डिस्क्राइब द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की है, वो कहता कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नूं देखो तो फिर दसो कि की करो जिहड़ी भी यह बनूगी ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या ये नैगेटिवली स्क्यूड है, देख के दसो भी पॉजिटिव वाले पासे खिंची जाऊगी या नैगेटिव वाले पासे खिंची जाऊगी। हुण ये आपां इहदे वास्ते आपां नूं पता कोएफिशिएंट पहला तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस की हुंदा सीगा, मैं वैसे लिखण लगा एम मेजर ऑफ स्क्यूनेस की सीगा 32 23 याद है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की सीगा, ਇਹਦਾ नाम आप रखा सी बीटा 1 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ नाम की रखा ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ गामा 1, ਇੱਥੇ प्लस माइनस साइन सी डिपेंड करता सी μ3 ਤੇ ਵੀ μ3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव। चलो फिर हुण की कैलकुलेट करना पैना, सब तो पहला μ2 फिर μ3 दो चीज़ां कैलकुलेट करनियां पैणियां। हुण μ2 की है, सब तो पहला हुण तुहानूं ये लगूगा भी जिहड़ा μ2 आ ਉਹਦੇ बहुत फार्मूले आ, जे तुहाडी नॉलेज च आउंदा हुण ये सारे फार्मूले पिछे पढ़ी चलो। मेरी गल सुन लो, एक पहला चैप्टर जिहड़ा मैं ये चैप्टर करा लिया, जे थोड़ा ये हो गया ना पूरी कमांड हो गई इस चैप्टर से तो गां वाली प्रॉबिलिटी तुहानूं कुछ भी नहीं लगनी। जे थोड़ी इदा कमांड ना हुई इसका मतलब सारी प्रॉबिलिटी सिर खपाई हुई है। μ2 ये राजे वेरिएंस हुंदा, हुण जिन्होंने यही चेता भुल गया गां की करूगा,
μ2 ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, μ2 ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ μ1 ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। μ3 ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ μ2 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, x ਮਾਈਨਸ μ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ ਮੀਨ ਹੈ, ਸੋ ਮੀਨ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ μ2 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ μ1 ਡੈਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ μ1 ਡੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਰੀਜਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਉਣਾ x ਚੋਂ ਮੀਨ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ μ3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, μ3 ਦੇ ਕਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਸ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ 135 ਪੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 135 ਪੇਜ। ਸੋ μ3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆਈ ਥਿੰਕ μ3 ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ μr ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, μr ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ, ਯੈਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈਨਸ ਇਜ਼ rc1 μ r ਮਾਈਨਸ 1 ਤੇ μ1 ਡੈਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, μ3 ਦੀ μ4 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ μ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ μ4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਗਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ μ3 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ μ3 ਡੈਸ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। μ3 ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਦੀ ਕਿਊਬ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਾ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਦੀ ਕਿਊਬ। μ2 ਡੈਸ਼ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਡੈਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ μ3 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, μ, ਜਿਹਨੂੰ μ1 ਡੈਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਊਗਾ -1 ਤੋਂ 1 x plus 1 ਨਾ x plus 1 by 2 dx। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਰਥ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੀਰੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ t ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ t ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ x ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹੁਣ ਤਾਂ बहुत कर भी लए आ, एक एग्जाम्पल भी कर ली है। ये एक्स कितने सीगे, एक्स सीगे ते जे ये एक्स ही है नहीं तो यह मतलब कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा किहदे वास्ते, एक्स वास्ते, सॉरी एक्सपेक्टेशन वास्ते। जिहदे एक्स ही है नहीं वो फिर एक्सपेक्टेशन वास्ते एक कॉन्स्टेंट ही रह जाता। सो ये वास्ते फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कदे भी डिस्कस नहीं हो सकता। मेरे दिमाग च वैसे ही आ गया भी वो भी चीज़ डिस्कस होनी चाहिए है। अच्छा ये इंटीग्रेशन हम ये कर लूँगे ਜਾਂ मैं कर लेना एक बार वीडियो बंद करके। सो ये तुहाडा आ गया 1/3, ठीक है जी, मीन 1/3 आ गया। हुण मेन काम μ2 कैलकुलेट करना, तो मैं ये इदा कर लगा x माइनस म्यू का स्केयर। हम तुम बड़ा भजोगे पेपर च जो भी आ गया मूवमेंट कैलकुलेट करनी चक इंटीग्रेशन, मूवमेंट करनी है चक इंटीग्रेशन। हमेशा ये काम नहीं सेट होना, लोड़ अनुसार जिथे जरूरत आ। तुसी जे मान लो एक कॉलेज तो 1 किलोमीटर दूर रह रहे हो तो तुसी साइकिल पर आ सकते हो, पर जे तुसी उसे कॉलेज तो 50 किलोमीटर दूर रह रहे हो या 100 किलोमीटर दूर रह रहे हो तो उस साइकिल पर नहीं आ सकते। सो हर चीज़ तक पहुँचने का एक वे होंदा, आपकी सहूलत के अकॉर्डिंग अपन चुनना पैंदा। तो इत्थे की आऊगा एक्सपेक्टेशन x माइनस 1/3 का होल स्केयर। सो ये भी एक्सपेक्टेशन मैंने कढ़नी आती है -1 1। हम तुम कहोगे सर सानू किवें पता लगूगा भी साइकिल चक्कीए कि बाइक लईए या कुछ होर, सानू किवें पता लगूगा भी असीं नेड़े हाँ कि दूर हाँ। मैनू एक गल दसो इत्थे कितनियां कैलकुलेट करनियां, μ2 ते μ3 दो ना। जे इत्थे 10 लिखियां होंदियां फिर 10 बारी इंटीग्रेशन करना सी, नहीं करना सी ना। जे इत्थे 15 लिखियां होंदियां 15 बारी इंटीग्रेशन करना सी। सो ये आप ही अपन पता लग जाता भी आप कितना क दूर हाँ अपने कॉलेज तो, ठीक है। सो आपे ही देख लेता होंगे यार 15 बारी इंटीग्रेशन थोड़ी मैं करूँगा, दिमाग जोड़ा ये चलता जे चलता तो अपन इस चीज़ का पता लग जाता। हुण कई बारी आर मूवमेंट लिखी है मतलब आर बारी इंटीग्रेशन करोगे नहीं, इसका मतलब कुछ होर करना पो। जे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिता है क्वेश्चन च, आपां नूं पता मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक चेन की तरह होंदी है जिहदे च माड़ा लगी होंदी है, मन के की होंदे आ मूवमेंट्स है ना। तां इंटीग्रेशन छड्डो, इहदी हैल्प नाल कड्डो। इहदी हैल्प नाल किन्ने तरीके नाल कर सकते आपां, जां तां सीधी एक्सपैंड कर लो जां डेरीवेटिव कर करके कढ लो, वो तुहाडी इच्छा। समझ लगी। हुण तुसीं कहोगे सर इहदे च फिर पहला मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन लभ लैंदे। हाँ मैं लभना सी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जे इन्हां ने पुछया हुंदा μ3 μ4 μ5 μ15 तक पुछियां हुंदियां ना पहलियां 15 मूवमेंट, फिर मैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही पहला लभना सी क्योंकि कोफिशिएंट कंपेयर करने मैंने सौखे लगने सीगे। पर जो सिर्फ दो ही लभणियां फिर मैं क्या छड्डो इंटीग्रेशन कर लो, कित्थे की तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन वास्ते कितना काम आपां नूं करना पवे, तो बैटर है फिर तुसीं तां इंटीग्रेशन कर लो। की आऊगा कि x माइनस 1/3 का स्केयर x प्लस 1/2 dx। मैं तुहानूं दसी जाना जिन्नी कमांड थोड़ी इस चैप्टर च होगी जिन्ना तुसीं इहनूं समझे इस चैप्टर नूं प्रोबेबिलिटी थोड़ी उन्नी ही सौखी है। इहनूं सॉल्व करदा मैं फिर 2 मिनट ठहर जाओ। ये तुहाडी आ गई 2/9, ठीक है जी। μ2 कैलकुलेट होगी, उस तो बाद μ3 की बारी आ गई। μ3 की है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू दी क्यूब है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1/3 दी क्यूब की होगा -1 तो 1 x माइनस 1/3 दी 3 x प्लस 1/2 फंक्शन dx। ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन भी मैं कर ਲਾਂ। लो जी ये सब तो लेंथी ਇਹਦਾ -8/135 बन गया। देखो मैं थोड़ा जिहा कैलकुलेशन का मैनूं हैगा, जे बाई चांस तुहाडा होर आया आंसर तो वह आपे सही कर लियो, शायद मेरे अकॉर्डिंग इन्ना ही होना चाहिए -8/135। उस तो बाद हुण मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करो। क्या होगा μ3 द स्क्वायर μ2 दी क्यूब μ3 द स्क्वायर, μ3 द स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर क्या होगा -8/35
135 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ μ2 ਕੀ ਸੀਗਾ 2/9 ਦਾ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, और मैंने ये नहीं पता भी ये नंबर की आऊगा पर आ जाऊगा। उस तो बाद एवं ही लिखना, मान लो ये है 4, मैनू नहीं पता कितना होगा, कर लियो ये तो आंदा ही है बीटा 1 4 आ गया, पर उन्हें अपन तो मैयर नहीं पूछी, उन्हें अपन पूछा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की है बीटा 1 का अंडर रूट की आऊगा, बीटा 1 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट की आया 2। पर इत्थे एक साइन लाना हुंदा आपां, वो साइन किहड़ा हुंदा μ3 वाला, μ3 दे मूहरे की है माइनस 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 माइनस, μ3 वाला साइन। जानी कि हुण देखो गामा 1 की हो गया नेगेटिव, सो कर्व इज नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड मतलब नेगेटिव यह जी होगी, नेगेटिव वाले पासे इधर को खिंची हुई होगी। सो नेचर भी डिस्कस हो गया, ठीक है। इदा आप करना, यानी कि एक चीज अपन पता लगती है भी अल्टीमेटली ये साइन डिसाइड करता भी नैगेटिव स्क्यूड है या पॉजिटिव स्क्यूड है, तो ये साइन कौन डिसाइड करता, μ3। सो अल्टीमेटली μ3 डिसाइड करता भी ये पॉजिटिव स्क्यूड है कि नैगेटिव स्क्यूड है। देखो एवं झरोड़ा ही पाया हुआ तुहानूं ये μ3 कैलकुलेट जे वो तुहानूं पुछदे व्हाट इज दिस नेचर, दैन तुसीं की करोगे μ3 कैलकुलेट करो, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव स्क्यूड है, नैगेटिव है नैगेटिव स्क्यूड है। पर BSc फाइनल पास करने तो बाद जिन्ना टाइम तुसीं BSc च उन्ना टाइम तुसीं आई करोगे, भावें तुहानूं पता है भी कल्ला μ3 कैलकुलेट करके भी काम हो सकता सी, पर तुसीं नहीं करना, तुहाडे नंबर कट्टे जाणगे, क्योंकि वो पूछ की रहा, वो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछ रहा, μ3 कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस थोड़ी है। जे हुण तुहाडे दिमाग जाऊगा भी से जे सर वो पुछदा भी सिर्फ इन्ना कि दस दो भी कर पॉजिटिव स्क्यूड है कि नैगेटिव स्क्यूड है तां कर लईए, मैं कहूँगा नहीं। फिर भी BSc पास करने तो बाद कर लियो, पहला नहीं करना, पूरा करो काम आपदे वालों, आपां जिहड़ा अपना बनाया होया वो काम नहीं आपां करना। चलो अगे देखो, कुर्तोसिस कैलकुलेट करिए। कुर्तोसिस ताड़ा फेवरेट कुर्तोसिस, वो ये स्पैलिंग जी याद करके जाओ, होर ना किते बाद पंगा पै जाए। कुर्तोसिस पर वो लिखे ही हो ना, कई बार की हुंदा वैसे तो देखा जाए ना, जिमें वो कहते हैं जिमें पिछला क्वेश्चन सी वो कह देंगे फाइंड द बिहेवियर ऑफ द कर्व, तो उत्थे सिर्फ स्क्यूनेस ही नहीं कुर्तोसिस भी डिस्कस होना चाहिए। जे तो उन्हें सिर्फ ये क्या होया कि फाइंड स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, देन डिस्कस इट्स नेचर, फिर तो तुसीं कहोगे ओके आ, फिर तो इन्ना की करना। जे उन्हें क्या होया तो डिस्कस इट्स नेचर, दैट मीनस स्क्यूनेस कुर्तोसिस सारा कुछ डिस्कस होना चाहिए। पर अपने एडा चक्कर नहीं, जो तुम कल स्क्यूनेस भी कर दो, थोड़े जे चेकर से डिपेंड करता नंबर कटना चाहता या नहीं कटना चाहता। FX दिता होया मैं जान के थोड़ा जिहा सौखा क्वेश्चन चक लिया, 1/2 15-16 मिनट की वीडियो रहेगी अपनी बस, 0 कुर्तोसिस कटना। कुर्तोसिस का फार्मूला 2 दूनी 4 आया यार, ते ये तो सीगा मेजर ऑफ कुर्तोसिस, मेजर ऑफ कुर्तोसिस। कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस की हुंदा सीगा, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ बीटा 2, ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ बीटा 2 - 3, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ गामा 2। सो ये कैलकुलेट करने हैं, की कैलकुलेट करना पऊगा μ4 μ2 बिना डैश वालियां, ਇਹਦਾ मतलब मीन कढ़ना ही पैना, मतलब मीन ने आके डैश हटा देना। समझ लग रही है, थोड़ा जिहा इधर ये तो डैश लगा सी पर मीन ने आके इहनूं हटाउणा, जो इत्थे डैश नहीं लग्या होया तो मीन कैलकुलेट पहलां करना पैना। हुण इत्थे 2-3 तरीके है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कढ सकते हो, किवें करिए मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन करिए,
वैसे तो ये हैगी है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू 4 एक मिनट वेट करो, मैं देख आइडिया लाना फिर तुहानूं दसदा भी किहड़ा लाना चाहिए। देखो एक चीज़ है, मान लो कि मैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इत्थे लभ ला, थोड़ा जिहा दिमाग ना उत्थे घोड़े दड़ा के चले। मान लो ये आ गया 1/2 ई दी टी वी मी जो भी, ठीक है। म्यू 4 कड्ढण वास्ते की करना पऊगा, 4 बारी डेरिवेटिव, पर इहदा नहीं ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ x ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੂਗਾ, e ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਫੇਰ ਉਹ ਲੱਭ ਜੂਗਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ। सो ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਆਪੇ ਔਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਚੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ t ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ t, ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ t ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 4, ਸੋ ਮਿਊ ਨਹੀਂ 4 ਨਹੀਂ 3, ਮਿਊ ਆ ਗਿਆ 3, ਸੋ ਇੱਥੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਮਿਊ 2 ਇਹਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੋ ਮਿਊ 2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਿਊ 2 ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਊ 4 ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, 4, 1 2 3 4। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਡ 4, ਸੋ 5 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਤੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਆ ਇਹ, 1 2 3 4 5 6 ਸਟੈਪ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੀਨ, फिर उस तो बाद म्यू 4 कड्ढण नूं एक बारी इंटीग्रेशन, म्यू 2 कड्ढण नूं अगली बार इंटीग्रेशन, अद्धा काम आ जी समझ लगदी ना, तुहानूं समझना पऊगा आप नूं भी किहड़ा राह चुनना। सो मैं तां इह राह ते नहीं जाना, मैनूं लगदा कि तुहानूं नहीं जाना चाहिए, जाना जाओ गेड़े गुड़े खा के मुड़ आओगे। पहला मीन कैलकुलेट करो, वो की हुंदा म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ते इहनूं ही म्यू 1 डैश भी कह दिंदे आ, -1 तो 1 1/2 फंक्शन ते x ए वाला dx, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ आई थिंक 1/2 x²/2 1/4 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1/2, ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 1/2 x²/2, 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, -1 ਤੇ 1 ਉਹ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ, 1 0 ਆਊਗਾ क्योंकि ऑड फंक्शन है। चलो बढ़िया रह गया, आप मीन आ गया 0 ते म्यू 2 घटो, म्यू 2 की होगा x -0 दा मीन दा होल स्क्वायर, सो ये आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x -0 दा होल स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ की बन गया x स्क्वायर। ये तो बहुत सौखा काम हो गया जी अपना, देखो कित्थे की करना सीगा, कित्थे अपना कुछ भी नहीं रहा काम, की आ गया अपने कोल -1 तो 1 x² 1/2 dx, ये इवन फंक्शन है ना, सो इत्थे 0 ला के इत्थे डबल कर दो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹ 1/3 आंसर आ जाएगा। उस तो बाद म्यू 4 ऐसा लंबा काम, म्यू 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू दी पावर 4, एक्सपेक्टेशन ऑफ x -0 दी पावर 4, एक्सपेक्टेशन ऑफ x दी पावर 4
-1 ਤੋਂ 1 x ਦੀ 4 1/2 dx ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ 0 ਇੱਥੇ 2 ਲਾ ਦੋ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਊਗਾ 1/5 ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਮਾਈਅਰ ਆਫ ਕੁਰਤੋਸਿਸ सौखा हो गया ना मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाले नालों सौखा हो गया माइयर ऑफ कुर्तोसिस की आ लिखा है μ4 μ2 ਦਾ 2 μ4 की है 1/5 μ2 की ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ 1/3 ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 1/3 ਹੀ ਸੀਗਾ 1/3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ तो 1/5 1/9 ਇਹ 9/5 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਈयर ऑफ कुर्तोसिस मैग्नीट्यूड पता लगता किन्ना होगा कोएफिशिएंट की होगा कोएफिशिएंट इनु बीटा 2 कह दिंदे आ ते गामा 2 है जेड़ा कोएफिशिएंट की होगा बीटा 2 चों 3 घटा दो 9 बटा 5 -3 की आ गया 15 - नेगेटिव आ गया जे नेगेटिव आ जाता तो कर्व की होंदी है दबी हुई सो ਇਹਦਾ मतलब कर्व आ ना जेडी ਇਹ जी होगी दबी हुई इदां नहीं होगी भी खड़ी सीधी टाइप दबी जी होगी सो ये कुर्तोसिस भी कैलकुलेट हो गया हुण मैं देख ला कोई होर क्वेश्चन हैगा तो आप कर लेने इस एक्सरसाइज तक गया अच्छा राजे ये अपने को अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करता डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਇਹ ਬਰਨੌਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਦਲਿਆ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਦਿਸੂਗਾ ਦੇਖਿए ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਨੌਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਨੌਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ tx ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ tx ਤੇ ਇੱਥੇ fx x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 0 ਤੇ 1 ਦੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ e ਦੀ t0 f0 e ਦੀ t1 f1 ठीक है सो अपने को की आ जाएगा e ਦੀ t0 की है 1 f0 इथे e ਦੀ t1 है e ਦੀ t ਦੇ ਨਾਲ f1 सो f0 की आऊगा a आ जाएगा q ये याद रखियो बच्चे बहुत बोलते e ਦੀ t ਨਾਲ f1 की आऊगा आ पे p ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ p q e ਦੀ t तो ये चीज़ का ध्यान रखियो कि पी किधर रखनी है क्यू किधर रखनी है ये चीज़ गलत ना हो एक चीज़ है इस डिस्ट्रीब्यूशन अड अड वैल्यू से अड अड वैल्यू दी हुई तो पी प्लस क्यू का जो सम आ ये हमेशा 1 होगा ये भी तो एक अगली डिस्ट्रीब्यूशन आऊगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी पी प्लस क्यू मतलब 1 तो ये चीज़ का आप थोड़ा जहा देख लेंगे तो अपने को आ गया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हुण जे तुहानूं मैं कहां भी ये तो मीन कैलकुलेट करो तो वेरीएंस कैलकुलेट करो वो किवें कैलकुलेट करोगे की सीगा क्यू मूरे सीगा पी ई दी टी क्यू मूरे सी ना क्यू जेड़ा 0 ते प्रोबेबिलिटी हुंदी है वो मूरे सीगा हुण इहदा डेरिवेटिव करो एक डेरिवेटिव करोगे पहला दूसरे दूसरा पहला डेरिवेटिव कीता मीन आ जाऊगा तुहाडे कोले अच्छा एक चीज देखो पहला डेरिवेटिव कीता तां फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन आऊगी वो की हुंदी है मीन हुंदी है चलो फिलहाल आपनो मीन कैलकुलेट हो जाऊगा इत्थे वधिया टी दी वैल्यू 0 तो ये क्या होगा डेरिवेटिव इहदा कीता p e दी t क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t करना t दी वैल्यू पर 0 सो p एक चीज याद रखियो कि बाइनोमियल सॉरी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन च मीन आ जेड़ा वो हमेशा p हुंदा p है जेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ q है जेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ ऑब्वियसली जो सक्सेस ते फेलियर इकट्ठे रलदे आ तां 1 प्रोबेबिलिटी हो जाती है सो मीन आ जेड़ा वो की हुंदा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के बराबर होगा हमेशा
बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन च। उस तो बाद वेरिएंस कैलकुलेट करने वास्ते की एक होर चीज़ चाहिए अपन इहदा एक बार होर डेरीवेटिव कर दिंदे आ डी ओवर डी टी एम एक्स टी दो बार डेरीवेटिव करो इहदा यानी कि एक बार इहदा डेरीवेटिव होर कर दिए की आऊगा पी ई डी टी फिर ते टी की आ गया 0 पुट किया ए की आ गया फिर पी आ गया यानी कि म्यू टू डैश आ जिहड़ा वो की आऊगा वो फिर पी ही आ जाना। पर इदां तां आपां किन्नियां भी मूवमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इदां तां जे तुसीं आर्थ डेरीवेटिव भी इहदा करो तां की आऊगा टी 0 पुट करके आर्थ डेरीवेटिव करोगे वो भी यही आ जाना क्योंकि ई दी टी ते तां कोई इफेक्ट पैना नहीं टी की आ जाएगा 0 से इत्थे की बनूगा पी। पर शर्त ये आ भी आर आ जिहड़ी ना हाँ ठीक है R1 तो लैके तो कोई भी हो सकती आर्थ डेरिवेटिव भी P आ गया यानी कि म्यू आर डैश भी है P है म्यू टू डैश भी है वो भी P है। सो म्यू टू डैश को वरत के आप म्यू टू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू टू की सीगा वेरिएंस म्यू टू का फार्मूला की सीगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। सो म्यू टू की आया है अपने को म्यू टू डैश आ पे P ते माइनस ए की सीगा ए भी P। सो अपने को की आ गया P कॉमन काढ लो 1 माइनस P की हुंदा Q P प्लस Q है जेड़ा 1 है ना सो 1 माइनस P की है Q। सो P Q की आ जाऊगा वेरिएंस आ जाएगी। सो इदां ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ वेरिएंस मीन कैलकुलेट करी जाने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगी ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा जी एक चीज़ हुण तो काम तुसीं आप करना भी ਇਹਦੀ ਬਰਨੌਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਐਕਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਸਕਿਊਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਸਕਿਊਨੈਸ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ।